In the previous video I've already explained you few lines, one paragraph. So before reading further, I will just summarize what I have already taught you in the first video. So through this line, through the first paragraph, the poet says that beauty stays forever. It never fades away, rather it increases with the passing time. The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off with the passing time. Rather, it beautifies more and more. For the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy the good health. Then, through the line, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. This means that the poet says that every day it is beautiful, and beauty which fills us with the spirit to live. It is the beauty which builds the desire in us to live. Though there are many sad moments and cruel people around us, but it is only beauty which builds desire, want in us, within us, to live more and more. Okay? This is what I have taught you in the previous video. Now let's start reading further. Spite of despondence of an inhuman dearth. डिस्पॉन्डेंस मतलब होता है डिप्रेस्ड, ठीक है, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ग्लूमी मतलब सैड, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching says, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है एनाफोरा, जहाँ पर एनाफोरा यूज़ होता है द सेम यूज़ ऑफ सेम वर्ड्स इन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स. तो सेम वर्ड्स जहाँ पे यूज़ होते हैं बार बार दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में, उसको एनाफोरा बोलते हैं. लाइक ऑफ नोबल नेचर ऑफ ऑल द अनहेल्दी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ दो जगह यूज़ हुआ है, तो वो भी कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में, तो एनाफोरा हो गई हमारी लिटरेरी डिवाइस. देन हमारा एलिटरेशन यूज़ हुआ है. एलिटरेशन कब होता है? जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर इन क्लोज सीरीज, उसका प्रोमिनेंट किसी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है. एंड in alphabets A to Z there are 5 vowels A, E, I, O, U and rest of them are consonants. जैसे कि N का साउंड आ रहा है in noble nature, S sound is coming in some shape, तो ये alliteration हो गई. ठीक है, तो these two were the literary device used here. So through these lines the poet is trying to say that the beauty fills us with the spirit to live. It is beauty which builds the desire, the want in us to live, even if there are sad moments, depressed moments in our life and cruel people around us. अगर गंदे लोग, ख़राब लोग, क्रूअल लोग अगर हमारे आसपास हैं, या फिर हमारे जो मोमेंट्स हैं वो दुखी हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, फिर भी यही ब्यूटी है जो हमें वांट जगाती रहती है हमारे अंदर कि हमें और जीना है. ठीक है. सो here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people. इधर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ब्यूटी नहीं होगी हमारी लाइफ में तो जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे क्रूअल लोगों से भरी होगी. सो here एंड ग्लूमी मोमेंट्स एंड डिप्रेस्ड मोमेंट्स. इट्स ब्यूटी जो हमारे मन में एक हैप्पीनेस जगाती है, एक वांट जगाती है, एक डिज़ायर जगाती है. बट अगर ये चीज़ ब्यूटी नहीं होगी, वन वुड नॉट कंसिडर herself or himself a beautiful person, then he would be gloomy person, he would be sad. Every moment, each and every moment for him or her is sad. The world will be full of cruel people. It is the beauty which is created by God which helps us to remove the sadness from our hearts. तो ये beauty ही है जो God ने naturally सबको दी है, and it never fades, it grows, it increase as the time passes by. It is forever, the beauty is forever, it can never decrease, it can never end. So ये beauty ही है जो God ने which has created
इन ईच एंड एवरी पर्सन, एंड जो हेल्प करती है हमारे अपनी सारी सैडनेस अपने हार्ट से हटाकर, एंड क्रिएट्स एंड बिल्ड्स द वांट टू लिव. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that are themselves a cooling covert make gains the hot season the mid forest break. boon का मतलब होता है blessing. बून का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग होता है. रिल्स मीन्स अ स्मॉल स्ट्रीम, एंड ब्रेक का मतलब होता है अ प्रोसेस टू स्लो डाउन. BRAKE, इसका मतलब है अ प्रोसेस टू स्लो डाउन. ठीक है, सो here the poet describes the beautiful things. So first of all, let me tell you the literary devices used in this paragraph. Alliteration is used, use of consonant sound at the start of two words which are close in series. S का sound prominently आ रहा है sprouting shady, फिर again S का sound आ रहा है simple sheep में, then C का sound in cooling covert. तो ये सब हमारे क्या हो गए? एलिटरेशन हो गए. इमेजरी तब यूज़ होती है जब द पोएट वांट्स टू क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड. सो ट्रीज गिविंग शेड. ठीक है, तो ट्रीज जो शेड दे रहे हैं वो वी कैन इमेजिन बाय द लाइन स्प्राउटिंग शेडी बून. ठीक है, बून इज द ब्लेसिंग. अदर इज growing process of daffodils. So daffodils with the green world they live in, and the other is clean river streams, clear rills. तो ये सब हमारी इमेजरी हो गया. ठीक है, so by this paragraph the poet describes the beautiful things which are present on earth. तो इससे beautiful things जो हमारे earth में हैं उसको describe करते हैं. These are the sun, moon, trees, flowers. यहाँ पे daffodils word यूज़ हुआ है. daffodil is a flower, and the rivers. तो ये सारी चीज़ें जो बहुत beautiful हैं जो earth में हैं. poet says that all these things are like a blessing. So he says it is like a boon, it is like a blessing to us, bestowed on all the creatures by earth. Bestowed means सबको दी है God ने, जितने भी लोग earth में रहते हैं ये blessing सबको मिली है. He further describes that the tree provide us with shade, flowers with their beauty, and rivers with their coolness during hot summers. तो जैसे shade देते हैं trees, वैसे beauty देती है flowers, और rivers देते हैं coolness जब hot summers होते हैं. तो all of these are the beauties of nature which are like a blessing for us. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब beauty, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब blessing है हमारे लिए. ठीक है, जो नेचर ने प्रोवाइड की है टू एवरीवन. ठीक है, लेट्स कम टू द लास्ट पैराग्राफ. रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. वी हैव imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drinks. Immortal means never dying, जो कभी मर नहीं सकता उसको immortal बोलते हैं. Grandeur का मतलब होता है high rank और socially important, and such is to grandeur means which is something which is very important. ठीक है, socially very important. We have imagined for the mighty dead. Mighty is enormous. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink which can never die, pouring us unto us from heaven's brink. Brink मतलब edge होता है, heaven की edge. ठीक है, brink बोलते हैं उसको. So the literary device used in this is use of consonant sound at the start of two words which are in close series, that is alliteration. तो H आ रहा है have heard में.
फिर मेटाफर यूज़ हुआ है इमॉर्टल ड्रिंक्स के थ्रू. सो ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक. तो जैसे ब्यूटिफुल जैसे नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ ड्रिंक होती है, वैसे ही ब्यूटिफुल ब्यूटी है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया, विच इज़ फॉर एवर. ठीक है. फिर इमेजरी यूज़ हुई है यहाँ पर, बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम्स इस लाइन में. बुक्स डिस्क्राइबिंग वैलर ऑफ फाइटर्स, जो वो मतलब यूज़ कहाँ पे हुआ है, ग्रैंडियर माइटी डेड. एंड देन यूज़ हुआ है पोरिंग फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, गॉड प्रोवाइडिंग अस द बेस्ट थिंग्स. तो ये चीज़ें हम लोग इमेजिन कर सकते हैं. क्रिएटिंग एन इमेज इन द रीडर्स माइंड, इट इज़ इमेजरी. थ्रू दिस पैराग्राफ द पोएट फर्दर कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटिफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. तो फिर से वो कैरी करता है इस पैराग्राफ में और ज़्यादा ब्यूटिफुल थिंग्स जो अर्थ में प्रेजेंट है, जैसे कि सच एज द ब्यूटिफुल मस्क रोजेस विच हैव अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस. तो मस्क रोजेस, इनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है. देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स हु लेड देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्रीज फॉर ह्यूमैनिटी. तो इंसानियत के लिए जिन लोगों ने, जो ताकतवर ब्रेव सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ इसी अर्थ में गंवा दी, वही माइटी वॉरियर्स जो हैं उनकी बात करी है उसने. देन ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस. तो ये जो छोटी छोटी ब्यूटीफुल थिंग्स है वो गॉड हैज़ प्रोवाइडेड टू अस, टू ऑल ऑफ देम. दे आर लाइक अ नेक्टर विच बाय गॉड टू अस. तो ये नेक्टर की तरह है. जो नेक्टर क्या होता है, फ्लावर के जो बीच वाला पोर्शन होता है उसके अंदर एक रस होता है, मीठा रस, जो इंसेक्ट्स सक करती हैं, उसको नेक्टर बोलते हैं. तो ये उसने कंपेयर किया है कि ये जो जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो फॉरएवर हैं. जैसे नेक्टर होता है जो गॉड प्रोवाइड्स करता है फ्लावर्स में. ठीक है. एंड दीज आर दोज ब्यूटीज़ विच आर इमॉर्टल. ये ऐसी ब्यूटीज़ हैं जो इमॉर्टल हैं, मतलब दे कैन नेवर डाई. इमॉर्टल मीन्स थिंग विच कैन नेवर डाई एंड गिव अस द रीज़न टू लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मैनी सॉरोज इन आवर लाइफ. और यही चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं इस अर्थ में रहने के लिए, अपने लाइफ को खुश बनाने के लिए. डिस्पाइट हमारे पास इतने सारे ग्रीव्स, इतने सारे सैडनेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बट स्टिल ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं अर्थ में वो हमें मोटिवेट करती रहती हैं, रोज़ मोटिवेट करती हैं कि हमें अभी वी हैव टू लिव, विच बिल्ड्स द डिज़ायर टू लिव मोर फर्दर. ओके. So now I have ended with the explanation of this poem. If you have any doubt, you can ask. Thank you.